Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all are fine and doing great. Today we are going to start our lecture number 3 of science textbook. So first open the planner, students. Students, open the page F of your planner and mention date and day on the point number 3 and point number 6 of week 2, and also mention the date on the point number 3 of week 3, as we are going to done the question number 1 and 2 on workbook page number 9 and question from notebook, and unit number 2 food and balanced diet reading from page number 11 to 13. Students, on the workbook page number 7, match the definition in column A with correct term in column B. Okay, here in column A definitions are given here and you have to match the column A with column B. First, a tissue that hold two or more bones together at a movable joint. Okay, movable mean that can the joint that can move. Okay, ऐसा टिश्यू जो ऐसे दो या दो से ज़्यादा बोन्स को आपस में मीट कर जोड़ता हो उसको क्या कहते हैं? That tissue is called ligament. Okay, the framework of bones in a body. हमारी बॉडी में बोन्स जो मिलके फ्रेमवर्क बनाती हैं हम उसे क्या कहते हैं? स्केलेटन. अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शंस. टिश्यूज का ऐसा ग्रुप जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. ओके, अ थिक शीट ऑफ टिश्यू दैट अटैचेज अ मसल टू अ बोन. थिक टिश्यूज की एक थिक शीट जो कि एक मसल को बोन से अटैच करती हो, दैट टिश्यू इज कॉल्ड टेंडन. द बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स को बनाने वाला जो बिल्डिंग यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसे हम क्या कहते हैं? सेल्स. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? So students, on the page number 9, think critically. What will happen if there are no bones in our joints in our body? So what are joint? Joint हमारी बॉडी में वो पॉइंट है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स मिलती हों. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर आपकी बॉडी में जॉइंट्स ही ना हो तो आप तो क्या होगा? इमेजिन करें कि आपकी बॉडी में जॉइंट्स ही नहीं है तो फिर क्या होगा? देन वी वुड नॉट बी एबल टू वॉक, रन, बैंड एंड प्ले और मूव. Okay, so if there are no joints in our body, then we will not be able to perform all these activities such as walk, run, bend, play, move. Are your bones alive? Alive means in the, are your bones are alive? Yes, our bones are alive as they are made of living cells. क्योंकि यह किससे मिलके बनी है? लिविंग सेल से मिलके बनी है. So students, here we have question from notebook. You have to done these question on your notebook. So open your notebooks. Students, open your notebook, mention date and day. Topic: the human body. What question number 1 for notebook. What are the main function of the skeleton? हमारे skeleton का क्या main function है? Skeleton help us to give support to the body and for example backbone. Skeleton जो है हमारा ढांचा जो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी एग्जाम्पल क्या रहती है? हमारी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी. स्केलेटन फ्रेम द शेप ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी को एक स्पेसिफिक शेप देता है, फ्रेम प्रोवाइड करता है. प्रोटेक्ट सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ और बॉडी. हमारी बॉडी के इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स जो होते हैं उन्हें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल स्कल प्रोटेक्ट और ब्रेन. जैसे स्कल खोपड़ी हमारी ब्रेन दिमाग को प्रोटेक्ट करती है, महफूज रखती है. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज अ जॉइंट? Which two types of a joint have been discussed in this unit? Where is each of them found in the body? Write any one activity you can perform with the help of these joints. स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में आपसे सिंपली क्या पूछा है कि आपने जॉइंट को डिफाइन करना है. देन इसके कितनी टाइप्स हैं? वेयर द जॉइंट्स आर फाउंड इन आवर बॉडी. के जॉइंट्स हमारी बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं, और आपने कोई एक एक्टिविटी बतानी है जो कि आप जिनमें दोनों टाइप्स ऑफ जॉइंट जो हों इन्वॉल्व हों. सो डिफाइन जॉइंट. अ जॉइंट इज़ अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट. जॉइंट हमारी बॉडी में वो जगह, वो पॉइंट है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स मीट करती हों. Types of joint: there are two main types of joint, that is first one is ball and socket joint and number 2 hinge joint. And they are ball and socket joint is found in our shoulder and hinge joint is found in our knee. So the activity in which both of these joints are involved, throwing a ball, involve both types of joint. Okay, next question number 3, differentiate between voluntary and involuntary muscles with examples. Okay, you have to define you have to compare voluntary and involuntary muscles. Okay, voluntary muscles are those muscles which move when you want them to move. For example, skeletal muscles.
एंड इनवॉलेंट्री मसल्स परफॉर्म देयर फंक्शन विदाउट इंस्ट्रक्शन। अब वॉलेंट्री मसल्स क्या हैं? वॉलेंट्री मसल्स ऐसे मसल्स हैं जो कि आपके अंडर कंट्रोल में हो, आपके कंट्रोल के अंदर हो, जो आपके इंस्ट्रक्शन, जो आपके ऑर्डर के मुताबिक काम करें। फॉर एग्जांपल हमारे स्केलेटल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इनवॉलेंट्री मसल्स, ऐसे मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जो कि ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, जिसकी एग्जांपल में आ जाते हैं कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। कार्डियक मसल्स जो हमारे दिल में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे दिल को हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, एंड स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन और इंटरनल ऑर्गन सच एज स्टमक। नाउ स्टूडेंट ओपन द textbook page number 11. Here we are going to start as unit number 2, food and balanced diet. Food and balanced diet. Food and balanced diet. Okay, so student, in this chapter we will learn about food, that how food gives us energy to live and grow, and our balanced diet, that how our balanced diet keep us healthy. Okay, so food is important. Why food is important? खुराक हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लिविंग थिंग्स हैं, और लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए फूड चाहिए होता है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू ग्रो। फूड हमें एनर्जी देता है ताकि वर्क। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड हमें एनर्जी देता है ताकि हम काम कर सकें और खेल सकें। व्हेन यू डू नथिंग एनीथिंग यू सी यू सॉरी स्टूडेंट्स, व्हेन यू डू एनीथिंग, जब आप कोई भी काम करते हो, यू यूज़ अप एनर्जी। आप किसको यूज़ करते हो? अपनी एनर्जी को यूज़ करते हो। जब किससे लेते हो? अपने फूड से लेते हो। वाइल यू आर स्लीपिंग, जबकि आप सो भी रहते हो, इट सीम्स एज इट इफ़ यू आर डूइंग नथिंग, कि आपको लग रहा होता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को यूज़ ही नहीं कर रहे हो। हाउएवर योर स्टमक इज़ डाइजेस्टिंग फूड, जबकि आपका स्टमक, आपका मैदा जो है, फूड को हजम कर रहा होता है। योर ब्रेन इज़ वर्किंग, आपका ब्रेन वर्क कर रहा होता है। योर लंग्स आर ब्रेथिंग, आपके लंग्स जो होते हैं वो ब्रेथिंग में इन्वॉल्व होते हैं। एंड योर हार्ट इज़ बीटिंग, और आपका हार्ट जो होता है वो कॉन्टीन्यूसली बीट कर रहा होता है, ब्लड को पंप कर रहा होता है। ऑल ऑफ देम, और इन सब ऑर्गन्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ऑल ऑफ देम नीड एनर्जी टू वर्क प्रॉपरली। ओके, ऑल फूड्स हैव डिफरेंट फूड वैल्यूज़। जितने भी फूड्स आप अपने डेली इंटेक में लेते हो या फिर रूटीन में लेते हो, उनकी डिफरेंट फूड वैल्यूज़ होती हैं। सम फूड हेल्प यू टू ग्रो, जैसे उनका डिफरेंट फंक्शन होता है, कि कुछ फूड जो होते हैं आपको ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सम फूड गिव यू एनर्जी, कुछ फूड आपको एनर्जी देते हैं। अदर फूड बिल्ड अप द फैट्स इन योर बॉडी, और कुछ फूड जो होते हैं आपकी बॉडी में फैट्स को बिल्डअप करते हैं। फैट्स के होते हैं स्टोर्ड टिश्यू होते हैं आपकी बॉडी में, ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो आपकी एनर्जी को स्टोर करते हैं। सम फूड हेल्प टू बिल्ड अप पार्टिकुलर सेल, और कुछ फूड जो आप लेते हो, अपनी इंटेक में लेते हो, वो आपके सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। सम फूड हेल्प योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स, कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जो आपको जर्म्स के खिलाफ लड़ने में हेल्प आउट करते हैं, मदद देते हैं, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। और जहाँ पे पर भी इन्फेक्शन हो, ऐसी साइड जहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो या फिर कट लग जाए हो और इन्फेक्शन का खतरा हो, तो आपको इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। इफ़ यू ईट ओनली वन काइंड ऑफ फूड, अगर आप सिर्फ एक ही तरह का फूड लो अपनी इनटेक में, इट कैन नॉट डू ऑल दीज जॉब्स। क्या वो ये सब जॉब्स परफॉर्म कर सकेगा? नो, इट कैन नॉट डू ऑल दीज जॉब्स। सो यू नीड टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड। तो आपको क्या चाहिए? वैरायटी मीन टाइप्स। आपको बहुत टाइप्स ऑफ फूड चाहिए, ताकि आप इतने ये जो ढेर सारे जो आपकी बॉडी में के जो काम हैं, ताकि वो उनको करने में हेल्प आउट करें। टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आपको वो सारे न्यूट्रिएंट्स दें। यू नीड, और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी की ग्रोथ और हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आप व्हेन यू ईट ऑल द प्रॉपर फूड, जब आप प्रॉपर फूड लोगे, सब चीज़ें बराबर लोगे, वी से यू हैव बैलेंस डाइट। ओके, जब आप सब चीज़ें एक बैलेंस्ड अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में लोगे, तो हम क्या कहेंगे? आप क्या, कौन सी डाइट ले रहे हो? बैलेंस डाइट ले रहे हो। अ बैलेंस डाइट कीप्स यू हेल्दी। बैलेंस डाइट आपको हेल्दी रखने में मदद देता है, आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है। अब सो व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? अ बैलेंस डाइट मीन ईटिंग द राइट वेराइटी ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट। ओके, बैलेंस डाइट क्या है? कि आप सही खुराक को सही मिकदार में अपनी intake में लो। ओके, a balanced diet mean eating the right variety of food in the right amount. eating a balanced diet help us to fit and healthy. और balanced diet के को लेने की वजह से हम क्या रहते हैं? fit and healthy. Do you know? What do you know? Breakfast is the most important meal of the day. Eating a healthy breakfast is the best way to start your day. Okay, so आपको इससे पता चल गया है कि ब्रेकफास्ट जो है आपकी दिन की शुरुआत के लिए जो सबसे बेस्ट वे है, वो आपको क्या करना चाहिए कि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए अपने
ब्रेकफास्ट में हेल्दी फूड आइटम्स को लेना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, हियर यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स एंड दीज फूड आइटम्स by maintaining these food items in your diet, you keep your body healthy. So students, come to the next page. On the page number 12, discuss and answer. So you have to first discuss with your friends or sibling, then you have to answer this question that इस क्वेश्चन में सिंपली क्या पूछा है कि आपको 2 टाइप्स ऑफ फूड दे दिए गए हैं, प्लेट्स यहाँ पर दे दी गई हैं. ओके, तो मील ऑन योर लेफ्ट साइड एंड द मील ऑन योर राइट साइड. और जो आपकी मील आपके लेफ्ट साइड पर है ये बैलेंस्ड मील है और ये अनबैलेंस्ड मील है. क्यों आपने बताना है कि ये मील क्यों अनबैलेंस्ड मील है और ये क्यों अनबैलेंस्ड मील है. क्योंकि अब मैं आपको सिंपली हिंट दे देती हूँ, क्योंकि इसमें वो तमाम फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं. ओके, सो ये क्या है, हेल्दी फूड एंड दीज आर जंक फूड. टू ईट अ बैलेंस डाइट, अवॉइड जंक फूड. जंक फूड क्या होता है? जंक फूड क्या होता है कि आपकी बॉडी को के लिए की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. अब आपको अगर बैलेंस डाइट लेनी है तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं जंक फूड लेना छोड़ देना पड़ेगा. जंक फूड इज़ फूड दैट हैज़ लो न्यूट्रिशनल वैल्यू. न्यूट्रिशन क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिशनल वैल्यू मीन्स कि जिसके अंदर न्यूट्रिशन जो होते हैं बहुत कम अमाउंट में होते हैं. इट हैज़ हाई इन फैट. इसमें क्या होते हैं? फैट्स जो होती हैं वो हाई होते हैं, शुगर हाई होती है, जबकि फाइबर्स, प्रोटीन, वाइटामिन और मिनरल्स लो होती हैं. अंडरस्टैंड? जंक फूड इज़ यूजली हाईली प्रोसेस्ड. मीन जंक फूड बहुत हाईली प्रोसेस्ड मीन होता है कि ये बहुत से चैनल से, बहुत से वेज से गुजर के बनता है. जैसे इसमें बहुत से केमिकल्स, बहुत से एजेंट्स जो होते हैं और प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं. ओके, सो इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. एग्जाम्पल आ रही थी फिजी ड्रिंक एंड फैट्स फूड और जंक फूड. ओके, फूड ग्रुप्स. अब यहाँ पर हेयर इन दिस टॉपिक यू विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ग्रुप्स एंड देयर मेन फंक्शन इन आवर बॉडी. फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डू फॉर द बॉडी. अब फूड को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है. किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया है? ताकि वो उनका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है. These groups are carbohydrates, dietary fibers, proteins, fats, vitamins and minerals. Okay, these are the food groups. Different foods can contain a number of these things. Okay, अब different food groups, जैसे हम किसी कोई एक फूड ले लेते हैं, अब कोई एक फूड ले लेते हैं, उसमें उस एक फूड में बहुत से फूड ग्रुप्स इंक्लूडेड हो सकते हैं. जैसे हम लेते हैं फॉर एग्जांपल मैनी वेजिटेबल्स कंटेन. जैसे वेजिटेबल्स को ले लेते हैं तो वेजिटेबल्स के अंदर वाइटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं और डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं. ओके, एंड चीज़. अब चीज़ को ले लेते हैं तो चीज़ क्या है? चीज़ इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. चीज़ में क्या होती है? प्रोटीन भी होती है, कैल्शियम एंड फैट. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? सो हेयर इज़ द more information about what carbohydrate, dietary fiber, protein, fats, vitamins, minerals do for the body and example of foods that contain. So here you see that different food groups are given here with their function and their role in our body. Okay, we are going to discuss these food group. First one mentioned here is the carbohydrate. These are the main energy giving foods. अब carbohydrate क्या है? हमें main energy it is a main energy giving food. Understand? If you are working or running about a lot, you need carbohydrate to give you energy. अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, भाग रहे हो, तो आप क्या यूज़ कर रहे हो? अपने कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी को यूज़ कर रहे हो. Too little will make you tired. अगर आप अपने इनटेक में, अपनी खुराक में कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा लोगे तो क्या आप काम करते हुए जल्दी थक जाओगे. Too much may make you fat. Okay, carbohydrates are the major source of quick energy for us. So carbohydrate हमारी बॉडी को क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है. सो विच इज़ द क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस? कार्बोहाइड्रेट इज़ द क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस. फूड इन दिस ग्रुप ऑल्सो कंटेन फाइबर. अब कार्बोहाइड्रेट में जो आ जाता है उसमें क्या कुछ इंक्लूड होता है? फाइबर विच हेल्प इन डाइजेशन. ओके, जो हमें किस में हेल्प करते हैं? डाइजेशन में. सो grain, bread, rice, potato, popcorn, these food items are included in have carbohydrates. So you have to maintain these food items in your diet to get carbohydrate. Understand student? Come to the next page number 13. Here the next topic is dietary fiber.
डाइटरी फाइबर इज द पार्ट ऑफ फूड यू कैन नॉट डाइजेस्ट। हमारे फूड का वो पार्ट जो हम डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, जिसे हम हजम नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? डाइटरी फाइबर्स। अभी इट हैज़ नो फूड वैल्यू, इसकी कोई फूड वैल्यू नहीं होती क्योंकि ये हमें कोई एनर्जी ही नहीं देता। बट हेल्प, अब इसका फंक्शन क्या है? बट हेल्प टू मूव फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ फूड, no sorry student, but helps to move the waste through the digestive system। कि हमें किस में हेल्प आउट करता है? कि हमारे जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट, जो खाने का जो वेस्ट होता है, हम जो लेते हैं उसमें जो वेस्ट होता है, उसको हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे हाजमे के निज़ाम से एक्सक्रीट आउट, बाहर निकालने में मदद करता है। इट इज़ फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ फूड, और ये हमारे मोस्ट ऑफ जो फूड हम अपनी डेली इंटेक में लेते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। जिसके अब डाइटरी फाइबर किस में प्रेजेंट होता है? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ब्राउन ब्रेड में, होल ग्रेन में। सो स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू maintain your diet balanced diet, then you have to take these food items to get dietary fiber and to keep your digestive system healthy and strong. Next one, protein, they gives us energy। अब प्रोटीन भी हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। एंड आवर बॉडी बिल्डिंग फूड दैट मेक अस ग्रो, और हमारी बॉडी का क्या है? हमारी बॉडी को बिल्ड अप करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। दे हेल्प आवर बॉडी टू बिल्ड अप, कि मज़ीद बढ़ने में, एंड रिपेयर टिश्यूज़ एंड मसल, और हमारी मसल्स और टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प आउट करते हैं। ओके, दे इनेबल योर बॉडी टू रिप्लेस डेड सेल्स। ओके, प्रोटीन जो हैं हमें ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, हमें एनर्जी भी देते हैं, हमारे टिश्यूज़, जो डैमेज टिश्यूज़ और मसल्स होते हैं उनको रिपेयर करने में, ठीक करने में हेल्प आउट करते हैं, और साथ ही साथ हमारे डेड सेल्स को रिप्लेस करते हैं, डेड सेल्स की जगह न्यू सेल्स को रिप्लेस करते हैं। सो वी गेट प्रोटीन फ्रॉम फिश, मीट, beef, mutton, chicken, etc. Beans, egg, dairy, and from dairy products. Okay, so dairy product is a main source of protein. So all these food items contain protein. Fats gives us energy, fat पे हमें एनर्जी देते हैं, and help to keep the body warm, और हमारी बॉडी को गर्म रखने में मदद देते हैं। दो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव सम अमाउंट ऑफ दिस ग्रुप इन और डाइट, तो हमें इनकी फैट्स होती है, हमें हमारी डाइट में इसकी थोड़ी मिकदार, सम अमाउंट चाहिए होती है। टू मच ऑफ दीज फूड, अगर हम बहुत ज़्यादा लेंगे अपनी इस फूड आइटम्स लेंगे जिसमें फैट्स होगा, तो वो क्या करेंगे? कैन मेक अस फैट, जो हमें क्या कर देगा? फैट बना देगा, मोटा बना देगा। हेल्दी फैट्स आर लेस प्रोसेस्ड फैट। अब हेल्दी फैट्स कौन से फैट्स होते हैं? जो कि लेस प्रोसेस्ड फैट्स होते हैं। So fats is found in margarine, butter, cheese, nuts, fatty meat, ice cream, fried food, sweet, chocolate, cake. So we get fats from these food items. Okay, understand? Student, here we have a concept check, fill in the blanks and question answer. Okay, so if you understand all the topic we have learned today, you can easily solve these questions. Come to the next page. On the next page we have two food groups, that is minerals and vitamins. So these two groups are needed to our body in very small amount. Okay, and they keep our bones healthy and strong. These are needed in small amount by various parts of our body। ये हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, थोड़ी मिकदार में चाहिए होती हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन एंड साल्ट्स आर मिनरल्स दैट यू नीड। कैल्शियम मेक आवर बोन्स एंड टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब कैल्शियम की एग्जांपल आई थी। कैल्शियम हमारी बोन और टीथ को क्या बनाती है? हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाती है। डेयरी प्रोडक्ट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ इट। सो वी गेट मिनरल्स फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या रहते हैं? मिल्क, चीज़, यogurt। सो डेयरी प्रोडक्ट्स आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स फॉर अस। सम मिनरल्स आर फाउंड इन लिवर, eggs, cereals, milk, cheese, vegetables and fruits. So these items are good source of minerals for us. Next one, vitamins. These are chemical. Vitamins are chemicals which your body needs in small amount, and we need vitamins in very small amount. Vitamins keep your bones and skin healthy. Vitamins हमारी bones और skin को healthy रखते हैं. They help your eyesight. ये हमारी sense of vision means के eyesight, देखने की जो हमारी sense है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। गिव यू एनर्जी, हमें एनर्जी देते हैं। एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, और हमें इन्फेक्शन से भी बचाते हैं।
ओके। दे हेल्प वाउंड टू हील, और जहाँ कहीं हमें कहीं ज़ख्म हो या कहीं कट लग जाए तो उस ज़ख्म को हीलिंग मीन उसकी रिपेयरिंग, उसको ठीक होने में भी हमें हेल्प करते हैं, मदद देते हैं। वी हैव वाइटामिन्स ए बी सी डी एंड के, एंड दीज आर दी टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स ए बी सी डी, ए बी सी डी के। वाइटामिन डी इज़ मेड बाय स्किन, वाइटामिन डी को कौन बनाता है? हमारी स्किन। इन सनलाइट, सनलाइट्स की मदद से हमारी स्किन वाइटामिन डी बनाती है। सो द मेन सोर्स ऑफ वाइटामिन आर सन, fish, bread, oranges, vegetables, eggs and tomatoes. Understand, student? Dear student, open the workbook page number 10. First mention date and day. So unit number 2, food and a balanced diet. We are going to start written work on the workbook. It's time to revise the topic that you learn. That types of food groups. You have to write here types of food group, their function and example. You have learned about it in this lecture that carbohydrate. Example is given here that carbohydrate, its main function is gives us quick energy and help in digestion. कार्बोहाइड्रेट हमें क्विक एनर्जी देते हैं और डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, इट्स मेन फंक्शन। एंड एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? पॉपकॉर्न एंड ब्रेड। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन पॉपकॉर्न एंड ब्रेड। Here the next food group is dietary fiber. Dietary fibers, so they helps to move the waste through the digestive system. Okay, you have learned about it that dietary fiber हमें किस में हेल्प करते हैं? हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में से जो वेस्ट होते हैं उसकी मूवमेंट में, उसको हमारी बॉडी से मूव आउट करने में हेल्प करते हैं। अब डाइटरी फाइबर की एग्जांपल्स में आ जाते हैं वेजिटेबल्स, कोई भी वेजिटेबल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, कैरेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स आपको किस में हेल्प करते हैं? आपको ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ओके, सो प्रोटीन इज फाउंड इन मीट, चिकन एंड फिश, पल्सेस, फैट्स हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म, हमारी बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल आ जाती है चीज, मीट। ओके, नेक्स्ट वाइटामिन्स हेल्प वाउंड टू हील, हमारे ज़ख्मों को हेल्प हील होने में, रिपेयर होने में, सही होने में हेल्प आउट करते हैं। प्रिवेंट इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं फ्रूट्स इंक्लूड हो जाते हैं, जिनमें आपको भी फ्रूट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ऑरेंज एंड एप्पल। मिनरल्स मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, हमारी बोन्स को और हड्डियों को और हमारे दांतों को मजबूत बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं, जिसकी एग्जाम्पल क्या आ जाती है? मिल्क एंड फ्रूट्स। यू कैन गेट मिनरल्स फ्रॉम मिल्क एंड फ्रूट, ग्रेप्स एंड बनाना। स्टूडेंट्स, आपने बहुत ही नीटली और क्लीनली जो है यहाँ पर फूड ग्रुप्स और इनका फंक्शन लिखनी है, देन आपने ड्रॉ करने हैं, बहुत ही प्यारा सा करके ड्रॉ करना है ताकि आपका काम बहुत प्यारा हो और नीट और क्लीन हो। स्टूडेंट, हियर आवर साइंस लेक्चर नंबर 3 is completed. Revise all the topics that we learned today and complete your written work on your workbook. See you in the next lecture with new lesson. Till then, Allah Hafiz, fi aman Allah.